جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ کی ویڈیوز میں آپ نے اعتکاف کے فضائل سماعت فرمائے تھے اور اس کے بعد اعتکاف کے مسائل بھی آپ نے سماعت فرمائے تھے، دیکھے تھے گزشتہ ویڈیو میں۔ اور آج کی ویڈیو میں اعتکاف کی فضیلت بتانے کے بعد، اعتکاف کے مسائل بتانے کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اعتکاف میں ہمیں کیسے رہنا ہے، اعتکاف کا وقت ہمیں کیسے گزارنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے اور کن کاموں سے بچنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں مختصر طور پر کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو معتکف کو چاہیے وہ دوران اعتکاف 5 وقتہ نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ مسجد میں ہی ہوتے ہیں، لہذا وقت پہلے تیار ہو جائے اور تیار ہو کر ہر نماز 5 وقت 5 نمازیں آپ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معتکف کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک کام یہ کریں کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کو قرآن سے نسبت حاصل ہے اور قرآن کو ماہ رمضان سے نسبت حاصل ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے اب تک آپ نے 20 دنوں میں جتنا قرآن پڑھ لیا، لیکن کم سے کم ان آخری 10 دنوں میں اعتکاف کے روزانہ کم سے کم 3 پارے پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح 10 دن میں اعتکاف کے یہ ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح ہو سکے تو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر کنز الایمان کا بھی مطالعہ کریں، جس سے ایمان، عقیدے اور عمل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کے علاوہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے علاوہ، قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ، روزانہ 3 پارے کم سے کم پڑھنے کے علاوہ آپ کوشش یہ کریں کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 1000 مرتبہ کم سے کم کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور 1000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دوران اعتکاف آپ 5 وقتہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھیں اور درود شریف، کلمہ اور استغفار کا بھی ورد کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ، قرآن کی تلاوتوں کے علاوہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نفل نمازیں زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے اور خاص کر تہجد کی نماز ہے۔ ان نمازوں کی پابندی کریں آپ دوران اعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیمتی وقت عطا فرمایا ہے، اعتکاف کی توفیق آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، تو اعتکاف کے دوران آپ ان نفل نمازوں کی بھی پابندی کریں اور کوشش یہ کریں کہ روزانہ 20 رکعت کے حساب سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ روز کی 20 نماز ہوتی، ایک دن کی 20 نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 7 رکعت ملا کر روز کی 20 رکعت نمازیں قضا ہوتی ہیں ایک دن کی۔ اس حساب سے آپ جتنا ہو سکے اپنی قضا نمازوں کو بھی دوران اعتکاف ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے، اس کے علاوہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔
तहज्जुद के वक्त दुआ का अहतमाम करे, इफ्तार के वक्त दुआ का अहतमाम करे, नफिल नमाज़ों के बाद दुआ का अहतमाम करे। ये दुआओं का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। लिहाजा इस मौके को गनीमत जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अपने गुनाहों से माफ़ी चाहें, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से, ख़ताओं से, लग़ज़िशों से, नाफरमानियों से रब की बारगाह में गिड़ गिड़ा कर माफ़ी मांगे। मौला मैं तेरे दर पर बैठ गया हूँ, एक मोहतरम को चाहिए कि मैं तेरे दर पे बैठ गया हूँ, अब बग़ैर माफ़ी के मैं नहीं उठूँगा। जैसे हम दुनिया वाले की किसी के दर पर जाते हैं कि जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी मैं नहीं जाऊँगा आपके दर से, उसी तरह कोशिश ये करे मौला मैंने तेरी तौफीक से तेरे घर में बैठ गया है 10 दिन का एहतिकाफ, अब जब तक तू मेरे गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा मैं नहीं उठूँगा। ये अल्लाह तबारक व तआला से गिड़ गिड़ा कर रो रो कर कसरत से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे दौरान एहतिकाफ। अपने लिए दुआ मांगे, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ मांगे, अपने ख़ानदान वालों के लिए दुआ मांगे, दुनिया की दौलत भी मांगे, आखिरत की भी दौलत मांगे और सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की दुआ मांगे, उनकी भी दुनिया की कामयाबी के लिए, उनकी भी आखिरत की कामयाबी के लिए दुआ मांगे। कहने का मतलब मुख्तसर ये है कसरत से मांगे, अपने लिए मारे और सारी उम्मत मुसलिमा के लिए दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में ज़रूर ज़रूर कबूल फरमाएगा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 24 घंटे जिस लम्हा भी दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। तो दौरान एतिकाफ आप अपनी इबादत के साथ साथ, तिलावत के साथ साथ, ज़िक्र अस्कार के साथ साथ कसरत से दुआओं का एहतमाम करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, औराद वज़ाइफ के बाद, तिलावत कुरान के बाद, सारी चीज़ों के बाद अगर कुछ वक्त बचता है आप उलमाए अहले सुन्नत की किताबों का मुताजा करें, जिससे आपके ईमान में, अकीदे में, अमल में मजबूती पैदा होगी। कोई एक लम्हा भी बेकार जाने ना दे। एतिकाफ का एक एक लम्हा कीमती होता है। आपने 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, आप नफिल नमाजें पढ़ रहे हैं, आप तिलावत कुरान कर रहे हैं और आप दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, कलमे तय्यबा पढ़ रहे हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई वक्त बचता है इस मौके को गनीमत जानते हुए 10 दिनों में उलमाए अहले सुन्नत की किताबों का मुताला करें, जिससे आपका ईमान, अकीदा और अमल मजबूत होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और इसके अलावा एतिकाफ के अंदर सबसे बड़ा काम ये है कि अपना मुहासबा करें, अपना एहतिसाब करें कि मैं मुसलमान घराने में तो पैदा हुआ हूँ, क्या मैं इस्लामी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्या मेरे सुबह शाम मेरे गुनाहों में गुजर रहे हैं या नेकियों में गुजर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है ये नाफरमानी में गुजर रही है, मेरा काम जो, मेरी ज़िंदगी जो गुजर रही है ये कैसी गुजर रही है, अल्लाह ने जो मुझे दुनिया में भेजा है उसका मकसद क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। लिहाजा अपनी ज़ात का मुहासबा करें कि मैं कितने गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और कितने नेक काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रोज़ाना आप अपना मुहासबा करेंगे, आपको पता चल जाएगा हम कितने गुनाहों के समंदर में मुलविस है, कितने हम पानी में हैं ये मालूम हो जाएगा। लिहाजा उलमा इरशाद फरमाते हैं, सूफिया औलिया इरशाद फरमाते हैं, रब तबारक व तआला के फज़ल व करम से अल्लाह ने आपको तौफीक दी, एतिकाफ में बैठ गए तो एतिकाफ में बैठने के बाद आपको दुनिया से कट जाना है, बिल्कुल अपना ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से लगाना है, रब तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ लगाना है। और उलमा इरशाद फरमाते हैं, सूफिया इरशाद फरमाते हैं कि दौरान एतिकाफ आपको कम से कम खाना है, कम से कम बोलना है और कम से कम सोना है। आम दिनों में हद से ज़्यादा हम खाते पीते हैं, सोते हैं। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में दौरान एतिकाफ आप कम से कम गुफ्तगू करें और कम से कम खाना खाएं और कम से कम आप बातचीत करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चीज़ें तो करने की थी, अब नहीं क्या करना है दौरान एतिकाफ, क्या नहीं करना है वो एक ये कि अपनी आँखों को हराम देखने से बचाना है, अपने कानों को हराम देखने से बचाना है, अपनी ज़बान को गुनाहों से बचाना है। अब मस्जिद में है, आप एतिकाफ में हैं और मस्जिद में पर्दे भी जो इसीलिए बांधे जाते हैं कि दुनिया से कट जाए, लोगों की नज़रों से छुप कर आप अल्लाह की इबादत करें, ज़िक्र अस्कार करें, तिलावत कुरान करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पर्दे तो बांधे हुए हैं, दुनिया की नज़र से बच गए, लेकिन आप अंदर पर्दे में बैठकर, लोग समझ रहे इबादत कर रहे, लोग समझ रहे एतिकाफ में बढ़े, लेकिन अंदर बैठकर आपने अपना मोबाइल चालू कर दिया है, फेसबुक चालू कर दिया है, यूट्यूब चालू कर दिया है, इंस्टाग्राम चालू कर दिया है,
हराम देख रहे हैं और हराम चीज़ें सुन रहे हैं, तो ये कई का एहतिकाफ होगा। लिहाजा मुकम्मल रूहानी एहतिकाफ करना है। आप कम से कम इन 10 दिनों में अपने मोबाइल को बंद कर दें, खत्ते इस्तेमाल ना करें, सोशल मीडिया से दूर रहे, आप मर नहीं जाएंगे। 10 दिन अगर एहतिकाफ के दौरान अगर मोबाइल से दूर रहेंगे, लिहाजा कम मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। हाँ, एक बात है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना इसका मतलब ये नहीं, अगर इस्तेमाल करना है आप तिलावत कुरान पढ़ने में सुनने में इस्तेमाल करो, दरूद सलाम पढ़ने सुनने में इस्तेमाल करो, या उलमा अहले सुन्नत के बयानात को देखने में इस्तेमाल करो, ये आप कर सकते हो। लेकिन ना हराम चीज़ें देखना है, ना हराम चीज़ें सुनना है। और दौरान एहतिकाफ बैठ कर 1 से 4 लोग अगर हैं एहतिकाफ के दौरान, झूठ गीबत की चुगली की महफिल नहीं सजाना है, अपनी ज़बान को गुनाहों से रोकना है। ये मोतकिफ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो एहतिकाफ में हमें ये चीज़ें करना है और इन चीज़ों से परहेज करना है। अब एहतिकाफ का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि मोतकिफ को शब क़दर मिल ही जाती है। शब क़दर की इबादत की फजीलत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब क़दर में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब का दर्जा रखता है। यानी एक रात में मुसलमान अल्लाह की बारगाह में टूट के इबादत करेगा, दुआएं करेगा, जिक्र अस्कार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला एक रात की इबादत के बदले में उसे 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। आप अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी नेमत है। लिहाजा शब क़दर को अल्लाह के रसूल ने 5 रातों में तलाश करने का हुक्म अता फरमाया है। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आज पहली शब क़दर की ताख़रात है, यानी पहली ताख़रा है। 5 ताख़रातों में तलाश करना है तो आज 21वीं शब इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगी। लिहाजा इस मौके को गनीमत जानते हुए, चाहे मोतकिफ हो या गैर मोतकिफ हो, जो भी घर में हो, आज की रात जागने की कोशिश करें। और जागना ही नहीं बल्कि पूरी रात इबादत में, रियादत में, तिलावत में, ज़िक्र अस्कार में, दुआओं में पूरी रात को गुजारना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, लिहाजा एक मोतकिफ को एहतिकाफ के दौरान भी और शब क़दर में भी बिलखुसूस यही करना है। रात तमाम आपको तहज्जुद पढ़ना है, सलात तस्बीह पढ़ के अपने गुनाहों से माफ़ी चाहना है, और दरूद व सलाम पढ़ना है, ज़िक्र व अस्कार करना है, कल्म तय्यबा, इस्तिग़फ़ार, दरूद पाक, इसकी कसरत करना है शब क़दर की रात में भी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और सबसे अहम बात ये कि कोशिश ये करें आप शब क़दर में आपने तरावी पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, सलात तस्बीह पढ़ ली, कुरान की तिलावत भी कर लिया, कुछ ज़िक्र अस्कार भी कर लिया, तो कोशिश करें। उमूमन देखा जाता है कि लोग 50-50, 100-100 रकात नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, बजाय इन नफिल नमाज़ों के उलमा इरशाद फरमाते हैं अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करें। जितने दिन की आपकी क़ज़ा नमाज़ें हो चुकी है उसको आपका अंदाज़ा भी नहीं होगा। लिहाजा एक दिन की 20 रकात नमाज क़ज़ा होती है, उस हिसाब से चाहे हो सका तो आप 5 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, उस हिसाब से अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करें। ये आपके लिए ज़रूरी है, ना कि नवाफिल पढ़ना। नवाफिल उनके लिए ज़रूरी है जिनकी पूरी नमाजें फ़र्ज़ अदा हो चुकी हों। बुजुर्गान दीन पूरी 5 वक्ता नमाज़ें अदा करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, तो तब वो रात में नवाफिल पढ़ा करते थे। लेकिन हमारी हज़ारों लाखों क़ज़ा नमाज़ें बाकी है, उन नमाज़ों को बाकी रख के अगर हम नवाफिल पढ़ेंगे तो ये काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा कोशिश करें शब क़दर में आप क़ज़ाए उम्री अदा करने की कोशिश करें। 5 रातों में इन्हीं मामूलात पे अपनाएं। 21वीं रात, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन 5 रातों में इन्हीं मामूलात को आप अपनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, रियादत, तिलावत कुरान करें, ज़िक्र अस्कार करें, दुआओं मांगे और गुनाहों से सच्चे दिलों से अपने माफ़ी चाहें। 5 ताख़रातों में यही मामूल अपनाएं। इंशाअल्लाह कोई ना कोई इसमें से एक शब क़दर होगी, और जब 5 रातों में जागेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसकी रहमतों से, बरकतों से, फजीलतों से हम सबको मालामाल फरमाएगा। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो भी आप एहतिकाफ में बैठ रहे हैं वो इन्हीं मामूलात पर अमल करते हुए अपने एहतिकाफ के दिनों को गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने से क़ब्ल आप तमाम सामीन नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस उन नाज़रीन सामीन से जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं या मेरी वीडियो पहली मरतबे देख रहे हैं, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें,
اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، جو میں بناتا ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں، اس سے آپ کے علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ ان کو صدقہ جاریہ کی طرف زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اس پر آپ بھی آمین فرمائے، کسی ایک کی آمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو اس کے صدقے میں سب کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو، بالخصوص آپ تمام سامعین و ناظرین کو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارکہ کے اس آخری عشر کو خوب عبادت اور ریاضت میں مبتلا رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو زمین آسمان کی ہر بلا سے، ہر چھوٹے بڑے مرض سے ہماری حفاظت فرمائے، اور سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بالخصوص سارے عالم کے مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور غزہ میں جتنے اہل ایمان شہید ہو رہے، مرد ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو قبضہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان جیلوں میں بے قصور بند ہیں انہیں باعزت رہائی کے سامان مہیا فرمائے، اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔